जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूँहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रज़ा च होवे, थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ाई होवे। शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी तो हमेशा ही हर पल अपने अंग संग ही रहंदे ने। आज संगत जी मैं अपनी फ्रेंड नूं मिली, वो भी गुरु महाराज जी दी ही संगत, बहुत प्यारी संगत है। और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਸਤਸੰਗ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਾਈ ਜੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੜਾਈ ਜੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 19 ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਕੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਕੜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ
बस बस गुरु महाराज जी थोड़ा बहुत-बहुत शुकराना, शुकराना, शुकराना। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ-ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ-ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। शुकराना शुकराना शुकराना। लव यू लव यू लव यू लॉर्ड गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मंत्र जाप नाल अपना शुकराना शुरू करदी हाँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी प्यारी साध संगत जी नूं भी जय गुरु जी। गुरु जी प्यारे गुरु जी और प्यारी साध संगत जी, मैं तुहानूं एक करिश्मा की जो एक चमत्कार होया मेरी जिंदगी दे विच मैं ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करना चाहनी हाँ। सत्संग है मतलब गुरु जी ने बहुत बहुत वड्डा मेरे नाल चमत्कार किया है। गुरु जी ने एक गुरु जी मेरी लड़की है जो ਉਹ है 15 साल ਦੀ है। मतलब ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਝ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਊਡਰ ਆਉਂਦਾ ਮੋਰਿੰਗਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਮਗਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਂਟਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ। ਡੇਲੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਜਲਦੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਗਰ +2 ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਝ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਬੈਠੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਬੈਠੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਵੂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਰੀ ਮੰਮੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ।
ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਆਂਟੀ तेरे नाल मैं ज़रूरी गल करनी है, बहुत ध्यान से सुन। तुझे लगता है कि तेरे बच्चों को किसी की नज़र लग गई है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इतने दर्द और पीड़ा में है इसीलिए क्योंकि वो मानसिक तनाव से जूझ रहा है। उसको ज़रूरत है तेरे प्यार और सहारे की। तेरे पास मेरे लिए तो समय नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय निकाल, वो चंगा भला हो जाएगा। बाकी फ़िक्र मत कर। उसकी देखभाल करने के लिए मैंने एक दूत भेज रहा हूँ जो 24 घंटे में उसकी रक्षा करेगा। अब ऐसी ही देखती रहेगी, फिर एक शुक्राना कर दे। मेरे गुरु जी भक्तों के साथ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਕਈ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂਗੀ, ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। सोने परम पिता सा सतनाम जी, करूं विनती सुबह और शाम जी। हर श्वास में मेरे दाता, रहूं जपदा तेरा ही नाम जी, रहूं जपदी तेरा ही नाम जी। बिन मांगे सब कुछ देते, बदले में कुछ ना लेते। क्या करूं मैं तुझ पर कुर्बान जी, हर श्वास में मेरे दाता, रहूं जपदा तेरा ही नाम जी, रहूं जपदा तेरा ही नाम जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अपना हत्थ साडे सिर ते रखो गुरु पा, प्यारे गुरु पा, प्यारे गुरु पा, प्यारे गुरु पा, हर पीड़ा तो हर दुख तो बचाने वाले गुरु पा, हर तकलीफ तो बचाने वाले गुरु पा, हर खुशी लियाने वाले गुरु पा। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी तुसी आँखों में आंसू आ जाते हैं गुरु जी, जब तुसी ऐसे करिश्मे करते हो, दिल बहुत हो जाता गुरु पा भी थोनू आके ना कुट के जप्फी पा ली जी, एवें हुंदा है गुरु पा। मेरे तो मम्मी नहीं हैगी ना मेरे डैडी हैं, मेरा तो मायका ही तुसी हो गुरु पा। उसी तरह जैसे एक पिता अपनी बच्ची की रक्षा करता ना, उसी तरह गुरु पा
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਪਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, हे ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी, प्यारे गुरु पा, जय गुरु पा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। सारी प्यारी साध संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी। राज अंकल जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ प्यारी बेटी मुंबई तो। आज डेट है 16 ਦਸੰਬਰ, दिन है मंगलवार ਦਾ। ਔਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:07 ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि बेअंत बेअंत, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का श्वास श्वास तो शुक्राना है। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग इतना प्यारा है। मैं पिछले साल सितंबर 2024 से जब से गुरु जी महाराज जी ने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा है, मेरी सारी लाइफ ही गुरु जी ने इतनी ब्लेस की है, इतनी 360 चेंज कर दी है। और इसके लिए मैं सिर्फ इस पूरी ज़िंदगी, इस जन्म में नहीं, पिछले अगले जितने जन्मों में गुरु जी जिस भी जन्म में मैं आऊँ तो गुरु जी का मैं हर रोम रोम से शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। और मुझे जैसे गुरु जी के संगत जी जो टेलीपैथी से मैसेज आते हैं वो सारे 100% हमारे लिए, हमारे से ही कनेक्टेड होते हैं। और मेरा बहुत गुरु जी अपने बच्चों की हर इच्छा, हर उनकी जो चाहना होता है, हम जो चाहते हैं गुरु जी मिनटों में, पल में हमारे वो इच्छा पूरी करते हैं, पलक झपकते ही। और हमें बेहतरीन से ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे गुरु जी महाराज जी के जैसे मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ और तुझे के साथ आना है उससे ये मैसेज फॉरवर्ड कर दो और शुक्राना करके शेयर कर दो। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को भी वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया करती थी, मेरी मम्मी आंटी जी को भी। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मुझे और मेरे सारे परिवार को इतनी प्यारी ट्रिप ब्लेस की है। और गुरु जी महाराज जी ने हमें अपने बड़े मंदिर में बुला के अपने दर्शन कराए। ये ट्रिप जो गुरु जी महाराज जी ने हमें ना सिर्फ दिल्ली अपने बड़े मंदिर बुला के अपने इतने डिवाइन दर्शन कराए, और गुरु जी ने मुझे, मेरी मम्मी आंटी जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी और मेरी बेटी आंटी जी और जो मेरे बड़े ब्रदर अंकल जी जो अमेरिका से आए हैं अभी पिछले हफ्ते ही, हम सभी को, मेरे पूरे परिवार को अमृतसर गोल्डन टेम्पल भी जाके मत्था टिकाया। इतने सुंदर अमृत वेले गुरु जी ने बाबा जी के दर्शन करा के हमें ब्लेसिंग्स दिलाई। इन सारी
प्यार, आशीर्वाद और इतनी सारी ब्लेसिंग्स पाके गुरुजी के हम सभी, मैं, मेरा सारा परिवार, गुरुजी में सभी की तरफ से आपका चरण कमलों में श्वास श्वास से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज जी, आप पल पल हमें इतना बचाते हैं, हमें इतना हर कष्ट रोगों से बचा के, जबकि हमें तो पता भी नहीं होता कि हम पे कब किस पल किस घड़ी हमारे साथ क्या होना है। पर जैसे गुरुजी महाराज जी जानी जान है। और संगत जी, जब हमारी ये टिकट्स बुक हुई थी अमृतसर की और दिल्ली की, तो आजकल जैसे सभी को पता है तो फ़्लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो ये सभी एयरलाइंस की, इंडिगो हो या एयर इंडिया हो। तो हमारी फ़्लाइट का भी बहुत हमें ऐसे डाउट ही था, कुछ पक्का नहीं था कि हमारी फ़्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी, कि कैंसिल होगी। तो मैंने बस गुरुजी महाराज जी से यही अरदास लगाई थी कि गुरुजी, आपने ही ये ट्रिप ब्लेस की है, आपने हाथ पकड़ के मुझे, मेरे परिवार को सभी दर्शन कराने हैं। तो आप पे ही है कि हम ये फ़्लाइट हमारी हो जाए, हम पहुंच के दर्शन करके सही ठीक ठाक अपने घर वापस आ जाएं। और बस सेम ऐसा ही हुआ। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने अमृतसर गोल्डन टेम्पल से हमारी ट्रिप शुरू होते हुए दिल्ली आए, हम बड़े मंदिर दर्शन किए, गुरुजी महाराज जी का शबद गुरबानी, वहाँ बैठ के चाय लंगर प्रसाद से इतनी ब्लेसिंग्स लेके, जो दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारा है, सभी गुरुद्वारों में हमने जाके, सीसगंज साहिब गुरुद्वारे, इतनी हमारी ये अच्छी ट्रिप, स्पिरिचुअल और ब्लेसिंग से भरी हुई ट्रिप गुरुजी महाराज जी ने हमारी ये ब्लेस की, मुझे, मेरे परिवार को। तो मैं गुरुजी महाराज जी आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करें कम है। और संगत जी, इसी तरह से वापस आने के टाइम भी गुरुजी महाराज जी ने हमारी फ़्लाइट्स जो डिले हो रही थी, बहुत, दिल्ली एयरपोर्ट पे तो बहुत, इतने पैसेंजर्स इतने थे जो जिनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, और वो वहाँ पर बड़े सीनियर सिटीज़न, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ काफ़ी तंग परेशान हो रहे थे। तभी भी मैं गुरुजी को अरदास करते हुए बस यही कह रही थी कि इतने प्यारे दर्शन के बाद बस ठीक ठाक आप हमें, हमारी फ़्लाइट भले आगे पीछे हो पर कैंसिल ना हो, और हम अपने घर ठीक ठाक पहुंच जाएं। तो संगत जी, हमारी कल रात की जो फ़्लाइट थी कुछ 10 साढ़े 10 बजे की, तो आप यकीन मानेंगे बहुत सी फ़्लाइट्स कैंसिलेशन के बाद भी हमारी फ़्लाइट उड़ी दिल्ली से, और थोड़ी देर की डिले हुई, पर गुरुजी महाराज जी ने ठीक ठाक बहुत प्यार से, आराम से, अच्छी तरह हमें घर भी पहुंचा दिया। और मेरा जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुजी महाराज जी। मेरा आज का शुक्राना मैं आज आप गुरुजी के पावन मंत्र जाप से यहीं विराम करना चाहूँगी। और अपना अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए मुझसे ये सत्संग शेयर करते वक्त जो भी गलतियाँ हुई हों तो उनके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज जी, संगत जी। और मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर के दर्शन करके, और संगत जी, ये तो मैं बताना मेरे से रह गया, इतनी मैं भावुक हो रही हूँ, इमोशनल, और इतनी वो होके कि ये कुछ हमने इतनी जल्दी जल्दी में ट्रिप प्लान हुई और इतने थोड़े दिनों के लिए। तो हम जब पहले दिन ही दिल्ली पहुँचे सैटरडे को, तो पहले दिन ही गुरुजी महाराज जी ने इतनी हिम्मत और इतना प्यार से हाथ पकड़ के जाते ही पहले दिन भी मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल जी और ब्रदर अंकल जी को अपने बड़े मंदिर बुलाया ब्लेस करने। और अगले दिन संडे को हमने
सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। और जबकि मंडे को हमने कल रात को जो अपनी फ़्लाइट वापस आने की लेनी थी, तो मंडे सोमवार के दिन भी गुरुजी महाराज जी ने मुझे, मेरे मम्मी आंटी जी, मेरी बेटी आंटी जी, हस्बैंड अंकल जी और बड़े ब्रदर अंकल जी, हम सभी को दोबारा फिर से अपने बड़े मंदिर बुला के अपनी सारी प्यार भरी ब्लेसिंग्स और लंगर प्रसाद सभी से इतना ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी बहुत बहुत प्यारे हैं। उन्हें पता था उनकी बच्ची का इतने टाइम से मन है बड़े मंदिर आने का, और मेरी बहुत इच्छा थी, और वो गुरुजी महाराज जी ने ऐसे पूरी किया है कि मैं श्वास श्वास से शुक्राना करती हूँ आपका गुरुजी महाराज जी, श्वास श्वास से शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत भला, सरबत भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि स्वास स्वास शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी, स्वास स्वास शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं बहुत दिनों से गुरु जी की सत्संग करने का सोचा करती थी, किंतु क्योंकि हमारे घर में मेरे और मेरे पति अंकल की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि गुरुजी, मैं तो शायद कभी सत्संग कर ही नहीं पाऊँगी। संगत जी, ऐसा सोचते सोचते कई महीने निकल गए। अचानक हमारे एक परिचित ने कहा कि आप लोगों की इतनी तबीयत ख़राब रहती है, आप लोग सत्संग कराइए। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि 7-8 दिन में इस तरह की प्लानिंग हुई कि गुरुजी ने हमारे को सत्संग करने की आज्ञा दे दी, और हमारे घर में 7-8 दिन के अंदर सत्संग हो गया। किंतु जब सत्संग करवा रहे थे उससे पहले मेरे दिमाग में इतनी चिंता थी, क्योंकि हम अपनी तबीयत के कारण ना तो कहीं जा पाते हैं, किसी का सत्संग भी अटेंड नहीं कर पाते, तो हमारे कोई चिंता थी कि हमारे घर में पता नहीं सत्संग में कोई आएगा या नहीं आएगा। सत्संग में जिस तरह सत्संग अच्छी तरह से संपन्न होता है, वो संपन्न हम अच्छी तरह से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस दुविधा में मेरे को दिन रात टेंशन रहती थी संगत जी। लेकिन गुरुजी ने, क्योंकि ये गुरुजी की आज्ञा थी, इसलिए गुरुजी ने सत्संग पूर्ण रूप से अच्छा करवा दिया। और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने जो, यद्यपि हम संगत को नहीं जानते थे, तब भी हमारे घर में इतनी अच्छी संगत आ गई कि हमारे को विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी ने इतनी अच्छी तरह सत्संग करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यह सत्संग हमारे प्रयासों से नहीं हुआ, यह सत्संग गुरुजी ने करवाया। क्योंकि मैं गुरुजी से हमेशा कहा करती थी, गुरुजी, मैं तो ज़िंदगी में कभी सत्संग नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि हमारी तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि दिमाग और कोई बात सोच ही नहीं पाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मेरी गुरुजी से अरदास है कि जिस तरह सत्संग एक बार करवाया, ऐसे हमेशा सत्संग करवाते रहें और हमारे को थोड़ी बहुत सेवा करने का मौका देते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुराना, शुक्राना गुरु जी। जय भोलेनाथ, जय महाशिव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इसके अलावा एक दिन का मैं आपको
गुरुजी की कृपा का किस्सा सुनाना चाहती हूँ। एक दिन मैं सुबह अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ने के लिए घर से बाहर आई, किंतु चूँकि मेरे पाँव में तकलीफ़ होने के कारण मैं बाहर खड़ी हो गई और मैं उसको स्टैंड पे छोड़ने नहीं जा पाई। तो मैं बाहर खड़े खड़े उसको देख रही थी कि अचानक मेरे पास एक डॉगी आया और थोड़ी देर खड़ा रहा। उसके बाद वो थोड़ी आगे जाके एक ऐसा लगा कि एक सिक्के को उछाल रहा है। मेरा ध्यान अचानक उस पर गया। मैंने कहा ये डॉगी क्या कर रहा है, ये सिक्का है या क्या है? तो मैंने उसको गौर से ध्यान दिया। पहले मेरा ध्यान नहीं था, पर जब ध्यान दिया तो देखा कि वो एक छोटी सी तितली थी। उस तितली के साथ डॉगी खेल रहा था, उसको अपने पंजे से मार रहा था। वो तितली नीचे गिरी और गिर के बेहोश हो गई। डॉगी ने उसको पंजा मार दिया। मैंने डॉगी को जैसे ही मैंने देखा पास जाके कि ये क्या चीज़ है, देखा तो ये तितली थी। मैंने उस डॉगी को हटाया और हटा के देखा तो तितली बिल्कुल अचेत अवस्था में थी। मैंने सोचा कि उसने के पंजे से तितली मर गई। अचानक वहाँ से एक ट्रक भी गुजरा, छोटा ट्रक, लेकिन तो वो भी चूँकि मैं वहाँ खड़ी हुई थी इसलिए वो तितली को बचाता हुआ निकल गया। मैंने तितली को धीरे से उठाया। मैंने सोचा कि शायद अब इसमें जान नहीं है। मेरे को तितली का वो अवस्था देखकर बहुत दुख हुआ, किंतु मैंने उसको उठा के वहाँ पास ईंटों का ढेर था उसके ऊपर रख दिया। मैंने कहा ये थोड़ी देर बाद अगर इसमें जान होगी तो वो उड़ जाएगी, है ना। मुझे वहाँ उस टाइम मैं गुरुजी को याद करती रही, गुरुजी ये आपने क्या किया। और तितली को देख के मेरा मन बहुत दुखी होने लगा। मैं गुरुजी को बार बार याद करने लगी, गुरुजी इस तितली को अवस्था ठीक कर दीजिए। किंतु ऐसा सोचते सोचते मैं घर के अंदर आ गई। घर के अंदर आने पर अचानक मुझे ध्यान आया कि वो तितली को मैंने वहाँ ईंटों पे रखने की जगह अगर मैं किसी पौधे पे रख दूँ तो शायद उसमें थोड़ी देर बाद उसका रस चूस के, फूलों का रस चूस के उसमें जान आ जाए। मैं तुरंत बाहर गई और ईंटों पर से तितली को उठाया। तितली उस समय भी उसी अवस्था में थी जिसमें मैंने उसको वहाँ पे रखा था। मैं तितली को उठा के ले आई और अपने घर के आंगन में जो गेंदे के फूल थे उसके ऊपर मैंने उसको रख दिया। तितली में की अवस्था में भी कोई चेंज नहीं आया था। मैंने उसको फूल के ऊपर रख दिया। उसकी जो आगे टेंटिकल्स थी उसको फूल के ऊपर इस तरह रखा कि वो टेंटिकल्स उस पर फूलों को टच करती रही। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी देर में आके देखती रही। आधे घंटे बाद पश्चात मैं आई, मैंने देखा तितली उसी अचेतन अवस्था में ही थी, किंतु मैंने जब उसको बाहर दोबारा निकाला तो मुझे उसके टेंटिकल्स में और उसके पाँव में थोड़ी सी हलचल महसूस हुई। मैंने गुरुजी का इमीडिएट शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आज ये तितली, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि गुरुजी ये क्या हो गया। सुबह सुबह मैंने ये क्या देखा कि तितली है ना इस तरह की अवस्था में पड़ी हुई है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत टेंशन हो रहा था कि गुरुजी क्या कुछ गलत होने वाला है जो इस तरह की मैंने सुबह उठते ही ये इस तरह की तितली का अवस्था देखी। फिर मैंने जाके उस तितली को दोबारा उस पे फूल पे रख दिया। थोड़ी देर बाद मैं देखती रही। करीब 9 बजे के आसपास मैं उसको देखा तो उसमें धीरे धीरे जान आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उसको, जब मेरे को लगा कि ये ठीक हो जाएगी, मैं रख के और अपना काम करने लग गई। 1 घंटे बाद मैं भूल गई और अचानक मुझे ध्यान आया। मैंने अपने पति अंकल से कहा कि बाहर मैंने गेंदे के फूल पे एक तितली को बिठाया था, तो प्लीज़ ज़रा देख के आना उसकी चेतन आया है नहीं आई। तो बाहर अंकल जी आके देखते हैं, बोले वो तितली उनको पहले भी दिखा दिया था कि वो किस अवस्था में है। वो आके बोले कि अरे वहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं तुरंत बाहर आई, मैंने चारों तरफ देखा। मैंने कहा शायद गिर तो नहीं गई, किंतु संगत जी गुरुजी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो तितली में
जान आ गई और वो फूलों का रस चूस के वहाँ से 1.5-2 घंटे बाद वहाँ से उड़ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उस स्थिति को देखकर मैंने गुरु जी का अत्यंत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु जी, कौन सी ऐसी मुश्किल आने वाली थी जो आपने हमारे उस मुश्किल को टाल दिया और आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी ली, क्योंकि मैं सुबह से यही प्रार्थना कर दी, गुरु जी इस तितली को ठीक कर दो और इसको अपनी मतलब उड़ने वाली अवस्था में आ जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन मुझे जब तितली उड़ गई तो बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने गुरु जी का दिल से शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी हर बात का ध्यान रखते हैं और गुरु जी हम पर सदैव मेहर बना के रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं सोमवार का शुक्राना करने जा रही। रात 7:31। मेरे भोले बाबा, हर हर महादेव, महाकाल, मेरे गुरुपा का दिन है। सब गुरुपा मेरे शुक्राने को स्वीकार करना। मंत्र को जाप के साथ शुक्राना करूँगी। मेरे दाता, अगर आपकी बेटी से कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी, आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा, आप मेरे माता पिता, बंधु, भाई, मित्र, आप सब हो गुरुपा। मेरे गुरुपा, आप अपने चरणों से लगा के रखना गुरुपा, कभी अपने से दूर मत करना गुरुपा। मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरुपा, हर रिश्ते साथ छोड़ते हैं, धोखा देते हैं, मगर मेरे गुरुपा धोखे में हाथ पकड़ लेते, दुख में साथ देते हैं, परेशानी में खड़े हो जाते हैं। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, पहले क्यों नहीं मिले हमें? शायद मेरे माड़े कर्म थे, नहीं तो हम दिल्ली में भी आप इतने साल से थे, मगर गुरुपा आपके बारे में एकदम नहीं पता था गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर आप हमको पहले मिल गए होते तो शायद आपकी बेटी इस दुख से बाहर आ जाती। कहते हैं गुरुपा, माड़े कर्म भी काटने हैं, मगर गुरुपा मेरे कितने माड़े कर्म, कितने गुरुपा 22 साल से माड़े कर्म ही काट रहे हैं। हम नहीं जानते गुरुपा कि हमने क्या किया, गलत सही क्या किया, हम नहीं जानते गुरुपा। अनजाने में भी हुआ तो भी नहीं ध्यान है गुरुपा, आप माफ़ कर देना गुरुपा। हम गुरुपा कभी किसी को परेशान नहीं कर सकते, न किसी का निंदा चुगली करना चाहते हैं गुरुपा, न किसी को दुख देना चाहते हैं, न किसी के साथ बदतमीजी करते हैं गुरुपा। हाँ गुरुपा, इंसान है, कभी कभी किसी बात से मन दुखता है तो थोड़ी बात की बहसबाजी हो जाती है, वो भी गुरुपा सच्चाई के लिए। झूठ पसंद नहीं है गुरुपा, झूठ बात बोलना, झूठ लगाना बिल्कुल नहीं पसंद है गुरुपा। बाकी गुरुपा, अगर वो भी हमसे गलती है तो उसके लिए आप माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना गुरुपा। आपने हमारा परिवार की हमेशा रक्षा की, संभाला, मेरे बच्चों को संभाला गुरुपा। जिस वक्त हमको प्रॉब्लम हुई मेरा साथ किसी ने नहीं दिया गुरुपा। जिन रिश्तों को हमने अपना माना सब आते थे, मगर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की है मेरे बच्चों की गुरुपा। बहुत बहुत प्रॉब्लम में थे हम गुरुपा। गुरुपा, हर बात आपसे कहते हैं, किसी से नहीं कहते गुरुपा। आप बोलते हो ना कि जो बात है मुझसे कह लिया कर, मन हल्का कर लिया कर, तो गुरुपा
शुक्राने में हम अपना प्रॉब्लम जो हमने झेला है वो शेयर करें गुरुपा। संगत जी, जब हम कोई प्रॉब्लम हुई, हमने हर रिश्तों को निभाया संगत जी, कभी किसी के साथ हमने गलत नहीं किया संगत जी। हम हर लोगों की मदद करते थे, हमसे जो बनता था शरीर से मदद करते थे। कोई आ जाता था तो हम अपने घर में संगत जी कहते हैं मेहमान भगवान का रूप होता है, मगर संगत जी निस्वार्थ भाव से हम सबको बनाना खिलाना चाय नाश्ता बड़े खुशी खुशी हम करते थे संगत जी। कोई भी गेस्ट आता था तो हम किसी से नहीं कहते थे कि तुम लोग किचन में हेल्प, वो लोग आते हम कहते नहीं आप लोग बैठो हम कर लेंगे। मगर संगत जी जब हमें प्रॉब्लम हुई ना, गुरुपा सब जानते हैं, हमारे फैमिली से हर लोगों ने किनारा कर लिया संगत जी। कुछ दिन तक तो लोग आते जाते रहे, बड़ा प्यार दिखाया, बड़ी हमदर्दी। जब देख लिया कि समय ज़्यादा होने लगा तो लोगों ने किनारा कर लिया कि शायद हम उनसे मदद न मांगे। फिर हमको भी महसूस हो गया था संगत जी कि ये मेरी जो बीमारी है ना, शायद इसकी वजह से लोग दूरियां बनाए कि हम किसी से कोई चीज़ के लिए मदद न मांग ले, कोई हेल्प न मांग ले। और हमको भी महसूस हो गया था संगत जी, लोगों का कहते हैं ना बिहेवियर से इंसान समझ जाता है। अपने अपने बच्चों से कहा देखो हमको जो प्रॉब्लम हुई है ना, तो अब तुम लोग किसी के घर कभी मत जाना मगर किसी के घर एक गिलास पानी भी मत मांग के पीना। उन लोगों को ये ना लगे कि इसकी माँ बिस्तर पे है तो ये लोग आने लगे हैं तो इनके लिए फिर चाय नाश्ता खाना उन लोग को ये भारी पड़ेगा, मत जाना। नहीं पैसा रहेगा, बिना पैसे को ना किसी से रुपये मत लेना। संगत जी हम बहुत प्रॉब्लम झेले, बहुत प्रॉब्लम आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आ गई अचानक से संगत जी, न जाने क्या था, नेगेटिविटी था, ब्लैक मैजिक। हम तो ब्लैक मैजिक नहीं मानते संगत जी। जब से गुरु जी ने हाथ थामा ना, तब से हमको ब्लैक मैजिक लगा कि होता है। कहते थे लोग मगर हम मानते नहीं थे, क्योंकि मेरे अंकल हमारे घर में कोई नहीं मानते इन चीज़ों को, तो हमको कभी शक भी नहीं होता था किसी चीज़ के लिए। बीमार भी हुए प्रॉब्लम भी लोग कहते थे कि किसी ने कुछ किया, हमने कहा क्या किया है, क्यों करेगा कोई, हमको नहीं लगता था ये सब होता है। जब से गुरु जी ने हाथ थामा तब से सत्संग सुनते सुनते लगता है कि नहीं होता है, तभी तो लोग सत्संग में अपना अपना प्रॉब्लम शेयर करते, होता है तभी तो। हमारे बारे में भी गुरु जी का मैसेज था कि बेटा तुझे बिस्तर पे ब्लैक मैजिक से बिस्तर पे डाला गया कि तू बिस्तर पे रह, तू अपने से नहीं हुआ तेरे को प्रॉब्लम, ये बिस्तर को तेरे अपनों ने तेरे को ब्लैक मैजिक करके तुझे बिस्तर पे लिटा दिया है। खैर गुरुपा जिसने जो भी किया है उसको भी सद्बुद्धि दो कि हमारे साथ जो किया किसी के साथ ना करे गुरुपा, उसको भी गुरुपा अपनी संगत बना लो। गुरुपा आपने हमेशा हमारे परिवार को बचाया रक्षा किया, आपका लख लख शुक्र, अनंतम शुक्र, बेअंत शुक्र। संगत जी हमारे प्रॉब्लम के बाद धीरे धीरे समय निकलता गया, प्रॉब्लम ये धीरे धीरे, हम तो बहुत बुरे कंडीशन में थे, एकदम डेड बॉडी, मगर किसी तरह से धीरे धीरे समय के साथ थोड़ा बहुत बॉडी में रिकवरी हुआ। थोड़ा उठने तो पहले लेटे रहते थे, 6 महीने एकदम पड़े थे, हिल डुल भी नहीं सकते थे। बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, बस माड़े कर्म है काट रहे हैं संगत जी, क्या कहें क्या न कहें, बताने लगेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। मगर हमारी बीमारी के बाद बहुत प्रॉब्लम आई संगत जी, हर तरह का प्रॉब्लम, मगर हाँ बच्चों ने सहारा दिया, बच्चों ने सपोर्ट किया, बच्चों ने संभाला। दाई लोग तो सारी मेट बहुत धोखा दी, क्या बोले क्या ना बोले, सब समय पे सब धोखा देता है संगत जी, कोई काम नहीं आता है। बच्चे नहीं होते तो हमारी तो बहुत बुरी हालत हो जाती, क्योंकि हर मेट धोखा देती थी, बेटियां संभालती थी, बेटा बहुत माड़े कर्म हमारे हैं जो हम काट रहे हैं। गुरुपा आप अपनी बेटी को माफ़ कर दो, कौन से कर्म की नहीं जानती, आप मेरे गुरुपा हो। बस गुरुपा आपने हमेशा हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला, आगे भी संभालना। कौन क्या कर रहा है गुरुपा, सत्संग सुनते हैं तो आँख खुलती है संगत जी कि लोग कितने मतलब ऐसे किसी को क्यों तकलीफ़ देते, किसी के घर में प्रॉब्लम क्यों देते, किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्तों में क्यों दरार डालते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। मैं इतना गलत है लोगों को
लोगों की सोच कौन से बदलेगा। गुरुपा कितना क्या करेंगे, अकेले गुरुपा पूरी दुनिया को कितने लोगों का समस्या दूर करेंगे। गुरुपा अभी तो खाली प्रॉब्लम ही दूर करते हैं। गुरुपा आप अपना ख्याल रखो। गुरुपा हर संगत का कष्ट अपने ऊपर मत लो। गुरुपा आप अपने आप का भी गुरुपा मत कष्ट दो। गुरुपा हम लोग संगत तो कष्ट में है ही, आप अपने आप को कष्ट मत दो। हमको 10% नहीं झेला जाता, आप 90% झेलते। गुरुपा बस इंसान के अंदर की गंदगी निकाल दो। गुरुपा सब इंसान के अंदर के दिमाग की सफाई कर दो। गुरुपा ताकि गलत निकल जाए, गंदगी नेगेटिव निकल जाए, सही से रहे, सही अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव नहीं सोचे। मेरे गुरुपा ने हमारे लिए बहुत किया संगत जी, बहुत किया। हमारे बीमारी के बाद मेरे बच्चों को संभाला, उनको अच्छी लाइफ दी, सब कुछ अच्छा दिया। आज जहाँ है मेरे बच्चों को गुरुपा ने पहुँचाया। संगत जी हम तो बेड पे थे, सब गुरुपा ने किया। सब मेरे पास जो है गुरुपा का दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसे मेरी प्रॉब्लम दूर की, सबकी दूर करना गुरुपा। सबके बच्चों को सही रास्ता दिखा, सबके घर में खुशियाँ दो, सुकून दो, शांति दो, पॉजिटिव रहे पूरे घर में सब। जिसके बच्चे, बहुत से बच्चे बिगड़ जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, आलतू फालतू दोस्तों के साथ रहते, तो गुरुपा उनको भी सद्बुद्धि दो कि वो अपनी फैमिली के साथ रहें, अच्छे रास्ते पे चलें, पढ़ लिख के अच्छी जॉब करें। सबको गुरुपा सबके बच्चों को अपनी ब्लेसिंग दो। गुरुपा हमारे बच्चों को आपने संभाला, अच्छा पॉजिटिविटी डाली उनके अंदर। आपका बेहद शुक्राना, लख लख शुक्राना। हमारी दोनों बेटियां गुरुपा की संगत है, बड़ा बड़ा दमाद संगत है। बाकी हम चाहते हैं गुरुपा आप पूरे फैमिली को अपने चरणों से लगा लो, सबका हाथ थाम लो। गुरुपा आपकी बेटी से नहीं हो पा रहा है अमृत वेला, बहुत मैसेज आता अमृत वेला कर, नहीं हो पा रहा है गुरुपा, नहीं कर पा रहा, आप माफ़ कर देना। बाकी गुरुपा हिम्मत शक्ति आप ही दो अमृत वेला करने की। गुरुपा आज हम सारा दिन सत्संग नहीं सुन पाए क्योंकि गुरुपा हमारे यहाँ सुबह से लाइट चली गई थी, तो गुरुपा मोबाइल की चार्ज भी नहीं थी, इसलिए नहीं सुन पाए। माफ़ करना गुरुपा, सत्संग कम ही सुनिए, माफ़ करना, इग्नोर नहीं करना चाहते, मगर नहीं सुन पाए, क्या करें। फिर 9:30 तक सो जाते हैं गुरुपा, नींद की दवा लेते हैं। आप कहते हो ना कि तुझे घमंड आ गया, सत्संग इग्नोर करती, नहीं गुरुपा हम इग्नोर नहीं करते हैं। आज 3:30 बजे लाइट आई, मोबाइल की चार्जर बैटरी चार्ज ख़त्म हो गया था गुरुपा। जैसे ही सोचा मोबाइल चार्ज में लगा, लाइट चली गई, कुछ खराबी थी, बन रही थी सब, तो बस उसके लिए नहीं सुन पाए। माफ़ करना गुरुपा। फिर सत्संग सुन रहे थे, फिर देखा ना कि मेरे अंकल हॉल में टीवी देख रहे हैं, बेटा कहीं गया हुआ, ऑफिस करते करते हम शुक्राना नहीं करेंगे तो फिर सब आ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए गुरुपा माफ़ कर देना। गुरुपा नहीं सत्संग सुन पाएंगे तो माफ़ करना, हम तो खुद सुनते हैं गुरुपा। नहीं सत्संग सुनते तो हमको बहुत बेचैनी होती है संगत जी, आदत बन गई है ना सत्संग सुनने की। नई चीज़ें सुनते उस दिन ऐसा लगता है ना कि आज हमारी कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि सत्संग के अलावा हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, मेरा यही दिन बन गया है, सारा दिन यही करते हैं, सोते वक्त भी सत्संग सुनते हैं। बस गुरुपा आप हमेशा संभालना। आपकी बेटी आपसे अरदास करती है कि हमारे बेटे का मैसेज आया था बेटे के लिए, तेरे बेटे को बाथरूम में करंट, कुछ होने वाला करंट से, मतलब बिजली से करंट का कुछ डर है, तो प्लीज़ गुरुपा, कल भी ऐसे ही था, तो प्लीज़ गुरुपा आप मेरी बेटे की रक्षा करो। आप उसके नानू, मेरे तीनों बच्चे, दोनों जमाई, नाती, पोती, अंकल, सबकी रक्षा करो, हर हादसे से, हर प्रॉब्लम से, करंट से, शॉर्ट सर्किट से, सबकी रक्षा करो, सबके अंग संग रहना। मेरे सॉरी संग जी, मेरे फैमिली को आपको चरणों में सौंप दिया, अब रक्षा करो, आप देखो, आप जानो, आप संभालो। बाकी आज के लिए इतना ही संगत जी। गुरुपा कल फिर शुक्राना करेंगे। गुरुपा कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, आप लोग माफ़ करना। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग भी मेरा शुक्राना शेयर कर दो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर देना। आप लोग गुरुपा आप लोग को बहुत बहुत ब्लेस करें, मेरे दिल से यही है। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें, झोली भर भर के गुरुपा ब्लेसिंग दें। मंत्र जाप का शुक्राना बढ़ाते संगत जी आप लोग भी करें।
ओम नमः शिवाय शिव जी साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी साई। ओम नमः शिवाय शिव जी साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी साई। जय गुरु जी शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेहद शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी।